Good evening, dear students. Today we will be discussing about addition of vectors. Fine. Vectors के operations की बात कर रहे हैं. In previous lecture, we have discussed the multiplication of a vector with a real number. Real number, that is a scalar. Okay. Multiplying a vector by a scalar. Now addition of vectors. देखो पहले आपको एक बिल्कुल ओल्डन मेथड से बताता हूं. Fine, it's very simple. That is called head to tail method. Okay, but before that, before going into addition, okay, first tell me that thing. Okay, which all vectors are eligible for addition? Okay, which all vectors can be added together? Fine. देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जाओ. सबसे पहले नंबर 1, similar quantities to be added together. Mean vectors of same type can be added, will be added together. Velocity will be added with velocity. Force vector will be added with force vector. Acceleration vector will be added with acceleration vector. Okay, vectors of same type can be added together. Then vectors which are acting at a point, mass, acting at a point. Fine, only those vectors can be added. Okay, mean only those vectors can be added together which are acting at a point. ऐसा नहीं है एक कहीं और लग रहा है, दूसरा किसी और पॉइंट के ऊपर लग रहा है और आप कहो कि दोनों को ऐड कर दें. नो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल. One is acting on one body, another one is acting on another body. That is not possible at all. All the vectors which you are adding together, they all should be acting at a point. They all should be acting at a body. The next thing is vectors which are acting at a point or body simultaneously, एक ही टाइम पे. ऐसा नहीं कि एक अभी लग रहा है और एक 2 दिन के बाद लग रहा है और थर्ड डे यू आर सेइंग कि दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो. नो सॉरी, दैट विल नॉट बी अलाउड. फाइन, ओनली दोज वेक्टर्स कैन बी एडेड टुगेदर विच आर एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे. इज इट क्लियर? Now, if the vectors obey these all three conditions, okay, only then those vectors are eligible for addition. मतलब हम उनको तभी ऐड करेंगे. ठीक है? Now, method for adding. Now, what is this head to tail method and how this is used? Okay, let us see. Suppose we are given with two vectors, a vector, simplest example लेते हैं. This is one vector, this is another vector. ये दो vectors हैं a and b. ठीक, tail and head of a, tail of b, head of. ठीक है, कैसे करना है वो देख लो. First of all, place the first vector. एक एरो ड्रॉ किया उतनी ही लेंथ का और उसी की डायरेक्शन में. लेट दिस एरो इज जे एच, रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मतलब ये जो एरो बनाया ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है. डन. नाउ इस एरो के हेड के ऊपर इसने ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया. इस एरो के हेड के ऊपर, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, दूसरा एरो बना दिया. इसके हेड के ऊपर उसका टेल प्लेस करना है नेक्स्ट वाले का. एच एन, ये एच एन एरो बना.
लेंथ बराबर, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस एच एन एरो इज एबल टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और पैरेलल है, डायरेक्शन सेम, तो एच एन एरो इज एबल टू रिप्रेजेंट बी वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मीन एच एन एरो इज रिप्रेजेंटिंग बी वेक्टर कंप्लीटली। मैंने दोनों वेक्टर प्लेस कर दिए, फर्स्ट वेक्टर प्लेस किया, उसके हेड के ऊपर दूसरे का टेल प्लेस करके दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग बी वेक्टर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, एज मेनी वेक्टर्स आर गिवन टू मी, जितने भी वेक्टर्स मुझे दिए गए हैं, ठीक है ना, पहला प्लेस करो, उसके बाद नेक्स्ट का टेल रख के उसकी डायरेक्शन में दूसरा, देन नेक्स्ट का टेल रखो प्रीवियस के हेड के ऊपर, उसकी डायरेक्शन में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सोन 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 सोन, जितने भी वेक्टर्स आपने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, sorry, 1 to all vectors placed. These are those vectors which are acting at a point simultaneously. Given है A and B are the vectors acting at a point simultaneously. तभी तो मैं इनको ऐड करने लगा, ठीक। Now you have to draw a single vector starting from tail of the first to head of the final का हेड ये रहा, टेल ऑफ द फर्स्ट से लेके हेड ऑफ द फाइनल तक जो वेक्टर ड्रॉ हुआ, दैट इज जे एन वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, मतलब ए एंड बी वेक्टर दे आर एडेड टुगेदर, तो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है जे एन, करेक्ट। अगर आप ज्योमेट्रिकली देखो, whatever is length of a vector, whatever is magnitude of a vector, jh ने रिप्रेजेंट किया jh लेंथ, उसके बाद b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय hn लेंथ, ओके, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका jn वेक्टर, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू jn वेक्टर, किस सिचुएशन में, जब a वेक्टर इज इक्वल टू jh वेक्टर and b vector is equal to hn vector, ठीक है। उस सिचुएशन में r वेक्टर इज इक्वल टू jn वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट सम, देख लो लेंथ, ये वाला लाइन प्लस ये वाला लाइन का लेंथ, टोटल लेंथ दोनों का सम, तो मीन when two vectors they are pointing in same direction, the magnitude of resultant is equal to sum of magnitude of both the vectors, ठीक है, एंड द डायरेक्शन, दोनों की यही डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का भी सेम वही डायरेक्शन है, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज जे एन वेक्टर, समझ में आया, ओके। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, जे एच वेक्टर प्लस एच n vector is equal to jn vector, jn vector का जो मैग्नीट्यूड है वो ये जो टोटल लेंथ बनी, ठीक, jn वेक्टर की, jn is a vector starting from tail of the first to head of the final, जो सबसे लास्ट में वेक्टर प्लेस किया उसके हेड तक, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तो सीधी लाइन है, तो मैग्नीट्यूड विल बी डायरेक्ट सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स और डायरेक्शन विल बी सिमिलर टू बोथ। कब होगा ऐसा, व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, दिस इज सिचुएशन 1, ये पहला केस था। सेकंड सिचुएशन इज, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि vectors are pointing in opposite direction, vectors are pointing in opposite direction, this is your suppose a vector, fine, and this is say b vector, nothing to worry, again I'll be applying that head to tail treatment, अभी मैं head to tail treatment ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जितने भी मेथड आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, इनिशियली सब हेड टू टेल था, ओके, कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने हेड टू टेल स्टडी किया और हेड टू टेल स्टडी करके किसी को ट्रायंगल नजर आया, उन्होंने ट्रायंगल लॉ बना दिया, किसी को पैरेललोग्राम नजर आया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बना दिया, किसी को पॉलीगॉन नजर आया मैनी वेक्टर एडिशन में, उन्होंने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बना दिया। बेसिकली एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हेड टू टेल ट्रीटमेंट, करेक्ट। नाउ सी, when two vectors are in opposite direction like this, how you will be calculating that resultant vector? Now first of all place vector a, एक एरो बनाया,
ठीक है ना, विच इज एबल टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इसकी लेंथ भी बराबर और सेम डायरेक्शन में। मान लिया वही जे एच वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग, जे एच एरो इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर कंप्लीटली, दैट इज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे बी वेक्टर के टेल को प्लेस करना है ए वेक्टर के हेड के ऊपर। ए का हेड कहां पे है, एच पे, तो बी वेक्टर का टेल रहा ये, इसको यहां पे प्लेस किया और उसके बाद उसको इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटेंड कर दिया। इन द डायरेक्शन ऑफ बी जब मैंने उसको एक्सटेंड किया, देन आई एम गेटिंग दिस, ये लो यहां तक एच एन एरो, H2n arrow is representing B vector both in magnitude and direction। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका और इसका लेंथ बराबर, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों पैरेलल है ना, पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, उसके बाद क्या बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अ सिंगल वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द फाइनल, टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द फाइनल, ये रहा हेड ऑफ द फाइनल, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। जे एन वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, जे एच एरो इज रिप्रेजेंटिंग, जे एच एरो इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर completely, that is both in magnitude and direction. Now hn is representing, hn arrow is representing, hn vector is representing b vector both in magnitude and direction. Is it okay? Now coming over to resultant, resultant vector will be an arrow starting from tail of the first to head of the final। head यहां पे है आप, ओके, तो जे एन वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, अगर आप ध्यान दो सिचुएशन वही बनेगी, वेक्टर एडिशन है, जे एच वेक्टर व्हेन एडेड विद एच एन वेक्टर इज गिविंग मी जे एन वेक्टर। जे एच इज ए वेक्टर, एच एन इज बी वेक्टर, ओके, is equal to Jn, that is R vector। Hope this is clear। लेकिन because the vectors they are pointing in opposite directions, अब यहां जो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंस, इसका मैग्नीट्यूड इतना था और इसका इतना, दिस मच मैग्नीट्यूड में से इतना मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। समझ में आया? मीन when the vectors are pointing in opposite directions, okay, the magnitude of resultant is equal to difference of both the vectors। and the direction, what about the direction of resultant vector? Direction of resultant will always be in the direction of bigger vector। bigger vector is a, bigger vector is a, और देखो आपका resultant vector is pointing in the same direction। इसको यहां पे पॉज करके बी वेक्टर को बड़ा कर लेना एंड देन यू सी रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाता है। यू नो वट एवर आई एम सेइंग, पॉज कर करके उसको साथ में नोट करना है। करेक्ट? नाउ गोइंग टू नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन द वेक्टर्स दे आर नॉट कोलिनियर। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स का सिचुएशन था। व्हेन द वेक्टर्स दे आर नॉट कोलिनियर, सपोज वी आर गिवन two vectors a and b, these are non-collinear, this is one a vector, this is another b vector, acting simultaneously at a point, so eligible for addition hai। now see here, head to tail method I'll be using। fine, see कैसे, first of all मैंने a vector को draw किया, okay, a vector is drawn, jh, magnitude of a is represented by jh arrow, direction same, so jh arrow is representing a vector completely। ठीक, then इसके हेड के ऊपर सेकंड वाले का टेल प्लेस किया और इन द डायरेक्शन ऑफ बी उसको फ्लाई करवा दिया। ये लो जी, दिस इज दिस, ओके, hn arrow is representing b vector both in magnitude and direction।
This is representing B vector. This is representing your A vector. Now the resultant vector. Resultant vector will be a single vector starting from tail of the first and going up till head of the final. ठीक है, तो एक वेक्टर यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, इसका लेंथ मेजर करो, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड देगा रिजल्टेंट का, और इसका डायरेक्शन इसके साथ एंगल थीटा मेजर करके ए वेक्टर के साथ यू कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. फाइन. तो यू कैन राइट JH वेक्टर प्लस HN वेक्टर. HN वेक्टर. देखो एक चीज और बताता हूं तुम्हें, ये दोनों वेक्टर्स यहां चले फिर सीधा आगे चल दिए, फिर अगर सीधा आगे चले, दिस इज कॉल्ड वेक्टर्स इन ऑर्डर. तो A एंड B इन दिस सिचुएशन इज इन ऑर्डर. ओके, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका देखो, ये यहां से ये ऑर्डर था, ये उल्टा हो गया ना, उल्टा कर दिया ना इसने, तो दिस इज ऑपोजिट ऑर्डर. रिजल्टेंट वेक्टर इज इन ऑपोजिट ऑर्डर. फाइन. नाउ तो JH प्लस HN इज इक्वल टू JN वेक्टर. JN वेक्टर. ओके, JH वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग A वेक्टर कंप्लीटली. A वेक्टर कंप्लीटली JH. फाइन. HN इज रिप्रेजेंटिंग B वेक्टर कंप्लीटली. JN R वेक्टर. तो आपका हो गया वेक्टर एडिशन. फाइन. दिस इज ज्योमेट्रिकली व्हेन आई एम गोइंग, तो यहां पे कैसे करना पड़ेगा, यहां पे आप स्केल यूज करके इसका लेंथ मेजर करोगे. ओके, और लेंथ को कन्वर्ट करोगे मैग्नीट्यूड में. डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन इस सिचुएशन में आप इसके रिस्पेक्ट में निकाल दोगे. रिजल्टेंट इतना एंगल बना रही है ए वेक्टर के साथ में, प्रोटेक्टर लेके यू कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन. इट्स ओके. नाउ इफ यू आर गिवन मेनी वेक्टर्स, many 3 4 5 6 on, again head to tail method will be used. वही सेम थिंग, पहले एक वेक्टर, उसके हेड के ऊपर नेक्स्ट वेक्टर का टेल, फिर उस नेक्स्ट वाले के हेड के ऊपर नेक्स्ट वाले का टेल, एंड सो ऑन लास्ट वेक्टर तक प्लेस करते चले जाओ, और फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल बी अ सिंगल वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द फाइनल. देखो नॉन कोलिनियर. अब ये so many हैं, many vectors, many I am saying more than 2, many vectors. ठीक है, more than 2. ओके, वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हो चाहे प्लेनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. वॉट एवर वेक्टर्स आर गिवन टू यू, ओके, ये ट्रीटमेंट यूज करके यू विल बी एबल टू ऐड द वेक्टर्स. ओके, लेट्स गो ahead with the situation. Let I am given with this A vector, this is B vector, this is C vector and D vector. These four are the vectors of the same type acting at a point simultaneously. I am told to add these vectors, और मुझे resultant vector find करना है. क्या करेंगे, head to tail method अप्लाई करेंगे. सेम थिंग, सबसे पहले जितना इसका लेंथ है उतना मैग्नीट्यूड का, ठीक है, एक एरो बनाया JH एरो, लेंथ बराबर, इट मींस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन. मीन JH arrow is able to represent A vector both in magnitude and direction. Okay, now B vector, HN, B vector. HN is able to represent B vector both in magnitude and direction. Completely you can say, no problem. C vector, इसके हेड के ऊपर नेक्स्ट वेक्टर का टेल प्लेस किया और उसकी डायरेक्शन में उसको फ्लाई करवा दिया. ये लो जी, दिस इज योर HP.
NP arrow is representing C vector completely. Completely when I am saying mean both in magnitude and direction. Now इसके हेड के ऊपर नेक्स्ट का टेल प्लेस किया और उसको उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका हो गया डी वेक्टर. PQ इज रिप्रेजेंटिंग डी वेक्टर. ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर लेके आए. क्या बताया था? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अ सिंगल वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द फाइनल. कर दें ज्वाइन? ये लो, टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द फाइनल, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. ये लो, सिंपल. JQ वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और इसकी डायरेक्शन भी यही होगी. मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ देगी, डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ए के रिस्पेक्ट में इसका एंगल आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक, तो सिंपली यू विल बी एबल टू राइट इट लाइक दिस. JH वेक्टर, ओके, JH प्लस HN plus NP plus PQ, okay, is equal to JQ. ये देखो, ये सारे ऑर्डर में है ना, सेम चले जा रहे हैं, और ये उल्टा हो गया, ऑपोजिट ऑर्डर. A B C D in same order, okay, and R is in opposite order. JQ vector is the resultant vector. अब JH is representing A vector, okay, HN is representing B vector, NP is representing C vector, PQ is representing D vector, and this is equal to JQ vector, that is R vector. हो गया वेक्टर एडिशन. इजी ना? हाँ, या इट इज इजी easy. और बहुत आराम से. You first study this, then we will be going to specific methods, okay, which are based on, उन सब का mother rule head to tail है. Okay, go through the content, and if there is any confusion, fine, just ask. Thank you. Have a nice day.